پہلا مطالبہ ہے الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد کسی بھی بات پہ، کسی بھی مشکل پہ، کسی بھی مدعے پہ مذاکرات کریں سوائے کرپشن کے۔ وہ خوف زدہ ہیں کہ اتنا بڑا لیڈر آ جائے گا اور عوام اگر اکٹھی ہو جائے گی اور 70-80% پاکستانی اکٹھے ہو کے ایک بندے کو لیڈر بنا لیں گے۔ ڈسٹرکٹ وزیر آباد جو انہوں نے ہمیں ایز اے گفٹ دیا، انہیں بتائیں گے نمائندگی کر کے کہ آپ کی یوتھ آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے تک ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب نے ڈسکا کو اگر ادھر کا دورہ کینسل کیا ہے تو ہم خان صاحب کے لیے یہاں آ گئے ہیں جہاں انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ جی آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ یقین کریں کہ ایک لاوا ہے لوگوں کے اندر ان چوروں کے خلاف نفرت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان گرگ۔ معزز ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ ککھڑ میں، جہاں پہ اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کل انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنی تقریر کریں گے۔ یہاں پہ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا پیچھے، یہ نا ابھی تیار ہو رہا ہے۔ یہاں کی جو انتظامیہ ہیں جو یہاں پہ، ان سے بھی آپ کو گفتگو کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ جی شکر اللہ کا، مالک کی کرم نوازی۔ آپ کے انڈر یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو آپ ہمارا جو حلقہ ہے یہاں پہ، اس میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے؟ خان صاحب آ رہے ہیں، کیا یہ ریلی جو ہے یہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں میرا بھائی، میں فیکٹ پہ بات کرتا ہوں۔ اس شہر میں ہم نے 4 سال میں تاریخی کام کیا ہے۔ یہاں پہ ڈرامہ سینٹر بنایا، یہاں پہ گکھڑ سپورٹس کمپلیکس میں عثمان بزدار صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ سینکڑوں ہم نے روڈ بنوائے ہیں، گلیاں بنوائی ہیں، 2 بڑے روڈ مین بنوائے ہیں۔ کام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم نے کروڑوں روپے کے، اس سے پہلے اتنے کام کبھی نہیں ہوئے گکھڑ کی تاریخ میں جتنے بھی ہوں۔ باقی خان صاحب کے حوالے سے میرے بھائی، جس طرح پورے ملک کا بچہ جاگ چکا ہے، اسے شعور آ چکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ان چوروں لٹیروں کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ اگر خان نہ آتا تو کیا ہمیں پتہ چلتا کہ یہ چور اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے؟ میں نے پیپلز پارٹی کو 20 سال دیے، یعنی کہ عوام کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو بہت گئی۔ زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ یہاں پہ کل دیکھیں گے کہ ہماری مائیں بہنیں مردوں سے زیادہ تعداد میں نکلیں گی، بچے نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے رات 11 بجے ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، کتنے بجے چاچو خان نے آنا ہے۔ آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ یقین کریں کہ ایک لاوا ہے لوگوں کے اندر ان چوروں کے خلاف نفرت کا، اور وہ پھٹنے کو ہے، سمجھ لیں یہ۔ دیکھیں آپ کے سامنے ضمنی الیکشن ہوا پرسوں کرم میں، کیا ہوا؟ خان ووٹ نہیں مانگنے گیا، صرف اس نے بیٹھ کے ایک میسج دیا کہ یار ان چوروں کو آپ نے ووٹ نہیں کرنا۔ ڈبل لیڈ سے پھینٹی لگائی ہے وہاں پہ۔ آپ کراچی دیکھ لیں، آپ فیصل آباد دیکھ لیں، وہ سیٹیں جو ہم نے 50 ووٹوں سے لے کے 1500 ووٹوں سے جیتی تھی، وہ اب ہم نے 35 ہزار کے مارجن سے جیتی ہیں۔ ان چوروں کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ککھڑ کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا سٹیج کبھی نہیں لگا، اس سے پہلے اتنا جوش و جذبہ بھی نہیں تھا۔ آج شام کو آپ دیکھنا، آج پی ٹی آئی کے ٹائیگر نکلیں گے، میں یہاں سے پی ٹی آئی کا کاؤنسلر بھی صاحب کا، اور کل خان کا، اس سے پہلے چشمے فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو کل انشاءاللہ تعالیٰ ککھڑ کی تاریخ میں ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹھیک جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، خان صاحب یہاں پہ آ کے تقریر کریں گے؟ جی بالکل ضرور۔ اتنی بڑی تیاری کا مقصد بھی یہی ہے، گکھڑ کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے، ہم ان سے ٹائم لیں گے اور وہ یہاں پہ تقریر کر کے جائیں گے۔ آپ کے جو گزشتہ سوال جو آپ میرے ساتھی سے پوچھ رہے تھے، پاکستان جاگ چکا ہے۔ آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ کے پی کے میں مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولوی اور سرخ ANP کے سوشلسٹ ایک پینل پہ کھڑے ہو کے ووٹ مانگ رہے ہیں، اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں۔ کراچی کے اندر MQM جو کہ شہر کی حقوق کی بات کرتی ہے، شہری حقوق کی بات کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور PMLN کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ یہ غیر فطری اتحاد کس بیس پہ؟ ان کے درمیان ایک ہی قدر مشترک ہے، کرپشن اور موروثی سیاست، یہ ایک قدر مشترک ہے، باقی تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور پھر بھی پورے پاکستان میں ایک شعور آ گیا ہے، ایک بیداری آ گئی ہے، اور ہر بندہ نکلا ہے، اور جس طرح سے الیکشنز کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، جس طرح سے لوگ اس ریلی کو، اس مارچ کو، باوجود میڈیا بلیک آؤٹ کے، باوجود اس کے کہ لائیو کوریج نہیں آ رہی، پھر بھی لوگ آ کے، ابھی کاموں کی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 دن وہ لوگ آ کے ویٹ کرتے رہے اور واپس جاتے رہے، اور تیسرے دن خان صاحب آئے ہیں، اور پھر وہ تیسرے دن 15-20 ہزار کی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔
तीसरे दिन आके उन्होंने रिसीव किया, पहले 2 दिन वो वहाँ से गुजरते रहे हैं सिर्फ। अच्छा, हमें बताएं कि ये जो इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला हुआ था, आपकी नज़र में क्या समझते हैं इसे? ये देखें, ये जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को चाहती हैं, नहीं चाहती कि पाकिस्तान में हकीकी एक लीडरशिप उभर के सामने आए, वो खौफज़दा हैं। वो खौफज़दा हैं कि इतना बड़ा लीडर आ जाएगा और अवाम अगर इकट्ठी हो जाएगी और 70-80% पाकिस्तानी इकट्ठे होकर एक बंदे को लीडर बना लेंगे तो हम किधर जाएंगे? हमारा हमेशा के लिए हम वाइप आउट हो जाएंगे, हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हम लोगों का मुस्तकबिल ख़तरे में आ जाएगा। ये वो कुव्वतें हैं। और इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बहुत पहले बता दिया कि ये एक इलेक्शन कमीशन जो है जिसका फैसला है, बल्कि अब तो हाई कोर्ट ने भी फैसल वावडा के केस के अंदर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है नाअहली का इख्तियार ही नहीं है, वो सिर्फ कागज़ पास या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो कोर्टों ने फैसला कर दिया हुआ है। सो ये डेस्परेट होके इस तरह के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह के फैसले कर रहे हैं और अवाम इनके फैसलों को नामंजूर कर रही है। यानी कि नाअहली के फैसले के हफ्ते के बाद करक में इलेक्शन होता है जहाँ पे खान साहब वोट मांगने नहीं जाते। जिन 7 हलकों में खान साहब जीते हैं उन 7 हलकों के अंदर उन्होंने रात नहीं गुजारी, उनका घर नहीं है, उनकी बरादरी नहीं है, वो किसी के शादी गमी में नहीं जाते कि हम लोग जबकि उनको मुंह दिखाने के लिए लोग वोट देने जाए। नज़रिए को वोट दे रहे हैं लोग, नज़रिए को वोट दे रहे हैं लोग इस वक्त। खान साहब जिस मकसद के लिए रैली निकाल रहे हैं, क्या वो पूरा होगा मकसद? देखिए, जिस मकसद के लिए रैली निकाली जा रही है ना, हमारा और खान साहब का एक ही मुतालबा है कि अवाम का मुतालबा, जो अवाम का फैसला है उसको पार्लियामेंट में उसका मिले, उनको नुमाइंदगी मिले और उसके साथ ही नई हुकूमत इलेक्ट हो। ये जो अभी इन्होंने कट जोड़ किया है ये एक अरेंजमेंट है, ये अवाम का फैसला नहीं है। जो भी इन्होंने अदम इत्मीनाद और साजिश के तरीके में हुकूमत बनाई है, ये सिर्फ एक कट जोड़ा अरेंजमेंट है, ये अवाम का फैसला नहीं है। जो हमारा मुतालबा है वो है कि अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन करवाएं, फिर अवाम जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करे वो आके उस पर नुमाइंदगी करे और हुकूमत करे, वो बेशक पीपल पार्टी हो, बेशक नून लीग हो या बेशक तहरीक इंसाफ हो। अगर रैली के दौरान अगर हमारे जो इनका अगर बैठ हो जाता है, वहाँ पे मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा पहला तो मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दें, उसके बाद जिस बात पे भी मुज़ाकरात करने हैं उस पर मुज़ाकरात करने के लिए हम आमादा हैं। और मुज़ाकरात भी जो सियासी पार्टियाँ, सियासी नुमाइंदगी होती है, उनमें मुज़ाकरात कभी भी ख़त्म नहीं होते। पहला मुतालबा है इलेक्शन की तारीख दें, उसके बाद किसी भी बात पे, किसी भी मुश्किल पे, किसी भी मुद्दे पे मुज़ाकरात करें सिवाय करप्शन के। NRO नहीं देना, करप्शन माफ़ी नहीं देनी। NRO ये 2 है, आवाम देख रही है, आवाम ने इनका NRO 2 मुस्तरद कर दिया है, बड़े तरीके से मुस्तरद कर दिया और करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं। उसके अलावा मुआशी बात करनी है, सियासी बहरान पे बात करनी है, समाजी बहरान पे बात करनी है, उसके लिए सारी सियासी पार्टीज बैठ के मुआहदा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहांगा कि सारे नूं चाहिए इमरान खान का साथ देना, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर इमरान खान का अवाम में साथ नहीं देती है लॉन्ग मार्च तो इमरान खान चाहिए इस आवाम का कोई एहसास ना करे, अपने बच्चों के कोल वापस टुट जाए, इन्हों के हाल से छड्ड देवे। ये इसे लायक ही ने, फिर जे अगर साथ नहीं ना देते तो फिर इसे लायक ही ने। साथ देना ज़रूरी है। इमरान खान एक भाई आदमी है, बंदा एक जना आदमी है, उसका साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, आप डस्का से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो डस्का में काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की गई थी, तो अभी चेंज क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं सिटी 55 आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डस्का में हमने बहुत जोश व खरोश से तैयारियाँ की। खान साहब के आने के सिलसिले में हमने बिल बोर्ड पूरा डस्का नहीं, पूरी तहसील डस्का पे उसको कर दिया। बकरे, ऊँट, घोड़े, ये सारी तैयारियां हमने जो है ना वो डस्का में की। लेकिन चूँकि खान साहब की एक अपनी जो है उनकी बॉडी का और उनका फ़ैसला है, तो हमने जो हमारे खान का फ़ैसला है वही हमारा फ़ैसला है। उन्होंने समझा कि GT रोड जो है ना अब हमें बेस्ट है, तो आज ये पॉइंट जो है वो ये डस्का में गखड़ जो है ना, ये सियालकोट डस्का को ये पॉइंट दिया गया, तो आज इसके विज़िट के लिए भी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए खान साहब ने डस्का को अगर उधर का दौरा कैंसिल किया है तो हम खान साहब के लिए यहाँ आ गए हैं जहाँ उन्होंने हमें बुलाया है जी। ठीक हो गया। तो आप जो वहाँ पे आवाम थी अब वो यहाँ पे आएगी, सारी इकट्ठी होंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। आप देखेंगे जी, मैं ये बात दावे से कहता हूँ, सारे जानसारा ने इमरान खान है यहाँ गुजरांवाला से और कामों की सारा ही, लेकिन डस्का सियालकोट की आप अलहदा से निराली शान देखेंगे।
वो आपको नज़र आएंगे यहाँ यहाँ पे डस्का में तो नज़दीक था उन लोगों के लिए जो रहायशी हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आना उनके लिए आसान होगा। मैंने दो इलेक्शन लड़े हैं जी MP के 2008 और 13 में, और मेरी सियासी लाइफ जो है ना 20-25 साल एक सियासी लाइफ है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी सेंटर पूरे पंजाब का PTI का। मैंने देखा है कि किसी लीडर के पीछे इस तरह लोग नहीं, लोग वाकई बिरयानियों पे, हम भी पहले की तरह लोगों को आते चाहते उनके खाने के इंतज़ाम करते थे, लेकिन खान के लिए हमें किसी को ना खाने के लिए कहना पड़ रहा है, ना कोई इस तरह का कोई लालच दे कर लाना पड़ रहा है। लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और नंबर हमारे जो है ना वो टाँके जा रहे हैं कि ये लाए हैं वो लाए हैं, लेकिन खान के लिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से ही आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक Thank यू, you very much. अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का फजल। अच्छा, हमें बताएं कि रैली की मुकम्मल तैयारियां हैं? जी बिल्कुल मुकम्मल तैयारियां रैली की। ठीक है। इमरान खान साहब का हम पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। गखड़ की वाम जो है वो इंशाल्लाह ताला 15 से 20 हज़ार आदमी हमारा जो है गखड़ स्टेज के पास मौजूद होगा। जब इमरान खान साहब की रैली पहुंचेगी, हमारा उनकी रैली से पहले जो इधर क्राउड होगा वो 15 से 20 हज़ार इंशाल्लाह ताला हमारा होगा। जमाल नासर चीमा और अहमद चट्टा साहब की क़यादत में हम इमरान खान साहब का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग उनका बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, हमें बताएं कि डस्का की तरफ जाने की बजाय ये मेन GT रोड ही क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से जो ये शेड्यूल जो है ना वो चेंज हुआ, ठीक है, और वरना तो उनका शेड्यूल जो था वो डस्का से सियालकोट की तरफ ही था, लेकिन वो सिक्योरिटी की रिस्क की वजह से थोड़ा प्लान जो है ना वो चेंज हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमें बताएं कि जिस मकसद के लिए रैली निकाली जा रही है, क्या वो मकसद कामयाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इंशाअल्लाह जी, इमरान खान जिस मकसद के लिए ग्राउंड में आया है और आवाम के दरमियान आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी क़यादत जो इमरान खान है, हमारे दिल की जान है, हमारे दिल की धड़कन है, इंशाअल्लाह हम हर मैदान में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ठीक हो गया। तो जहाँ तक रैली जाएगी क्या आप साथ ही होंगे? इंशाअल्लाह हमारा प्लान यही है, हमारे दफ्तर का प्लान यही है, वलीद भट्ट साहब की क़यादत में, अहमद चट्टा साहब की क़यादत में और जमाल नासर चीमा साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक प्रोग्राम बनाया हुआ हमारे पूरे ऑफिस में। माशाल्लाह। अच्छा, आप तैयार हैं, रेडी हैं? जी, अल्लाह के फजल से हमारी पूरी तैयारी है और हम इंशाल्लाह यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ शो करेंगे और खान साहब को बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद जो उन्होंने हमें एज अ गिफ्ट दिया, उन्हें बताएंगे नुमाइंदगी करके कि आपकी यूथ आपके साथ है और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करने तक हम खान साहब के साथ हैं। 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, जितने दिन भी खान साहब इस्लामाबाद बैठेंगे, इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। ये जो जज्बा अभी देखने में आ रहा है यंग जनरेशन में, क्या ये पहले भी था ऐसे? कह सकते हैं आप, लेकिन अभी जो जज्बा पैदा हुआ है, जो खान साहब ने बयानिया अख्तियार किया हुआ है, इंशाल्लाह इस बयानिए को हम आगे लेके जाएंगे और खान साहब के शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, बताएं हमें कि एक तो सबसे पहले ये कि गुजरांवाला में पहले डस्का में जा रहा थी, रैली जा रही थी, वहाँ से अब गुजरांवाला की तरफ आ रही है। क्या गुजरांवाला से खान साहब को ज़्यादा प्यार है ये हमारे कखड़ से? जी बिल्कुल, खान साहब को जो हमें उन्होंने तोहफ़ा दिया है ये ज़िला वज़ीराबाद, इसके वजह से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अहमद चट्टा साहब से मैसेज कन्वे करवाया था कि वो इधर से प्लीज़ गुज़रें और हमारा जोश व खरोश देखें, क्योंकि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं हर लिहाज से। इंशाल्लाह जैसे भी वो हमें बोलेंगे हम उनके साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जो यूथ जनरेशन है बड़ा जोश और जज्बा देखने में आ रहा है, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा, तमाम दोस्त जो हैं यूथ के कल इंशाल्लाह इधर पहुँचें और जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल करें और खान साहब के साथ खड़े हों, बस यही। तो आप खान साहब के साथ जाएंगे? जी इंशाल्लाह हम बिल्कुल जाएंगे, पूरी टीम हमारी यूथ की जाएगी, जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं सब इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका।